people, come on, तालियां हो जाए for Sunny Leone, everyone! Super. Well, Sunny, welcome to the Inorbit Mall. Can I have one more mic for Sunny? Sunny, okay. I'm sure यहाँ पे ये जो audience है, everyone is just, मतलब they are dying to see you out here. So everyone, people, दोनों हाथ ऐसे. Guys! Sunny, okay, your film कुछ लोचा है is releasing on 8th May. We would want you to talk about the film. What is the film all about? I'm sure जब हमने trailer देखा, it seems to be a super duper धमाल spicy comedy film. So we would want to know from you, what is the film all about? Well, hello, कैसे? सब ठीक है? Well, this film releases 8th of May, and comedy movie है, and it's about Mr. Patel's family, and Ram मेरे लिए कुछ भी कर सकता है to win a date with me, so he'll be better at next time. Okay, well, जी हाँ, जैसे सनी ने हमसे कहा कि it's a comedy film. Now tell me one thing, Sunny, yes, you told us about the film. How was your experience to shoot with Ram Kapoor? Any memorable experience that you would like to share with our lovely audience out here? Actually, हर रोज हम इतना मस्ती करते थे. Ram बहुत funny है, comedian है. He would make the whole crew, the whole cast, सबको, he would make everybody laugh. And I had the best time with Ram. He's so funny. Okay, any funny incident while you were shooting the film with Ram Kapoor or with the crew that you had when you were shooting the film? बहुत थे. बहुत है? Okay, one funniest incident, because जी हाँ, जैसे you said that it's a funny comedy film, so the funniest incident of the film while shooting? The funniest moment would be Ram ने एक statue find किया इस घर में, and he took a whole round around the house with this statue thing, and it was really really funny क्योंकि सब लोग उसके पीछे चल रहे थे, and everybody was running after him trying to catch him क्योंकि हम काम कर रहे थे, and also हमने बहुत मस्ती किया. क्या बात है. And यार, I must say that you are talking fantabulously in Hindi. यार, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. The way she is talking in Hindi, wow, superb. Okay, so tell me one thing. How difficult it was? Okay, your voice is dubbed in the film, or is it's dubbed? Okay, but you can still talk so well in Hindi. So are you taking the lessons? मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी movies बना रही हूँ, so हिंदी बोलती हूँ. So आप इंग्लिश में बोल रहे हो, so मैं भी इंग्लिश में बोलूँगी ना. Okay, नहीं, अब मैं सिर्फ हिंदी में बोलूँगी. यार, सीरियसली बहुत ही बड़ी बात होती है कि अगर कोई बाहर से आके इतना अच्छा हिंदी में बात करे. वाओ, फैंटाबुलस. सनी, हमने आपको इतनी सारी फिल्म्स में देखा हुआ है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कुछ लोचा है. ऑल ऑफ अस आर सुपर डुपर एक्साइटेड. अ शॉर्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगी. Well, जहाँ पे आपको उनको बताना है कि guys, you have to go and watch her film on 8th May. Yes, a छोटू सा message. Well, कुछ लोचा is coming out May 8th, so मैं चाहती हूँ that सब यहाँ जो सब है, please go watch it. Comedy film है, मेरा first family film है, so you get to see me in a different way than before. So everybody go out and watch the movie. Superb! Yes, जोरदार तालियां हो जाए for Sunny Leone, everyone! Okay. सनी, आपका गाना जिसमें हमने आपको देखा है ट्रेलर में, पानी वाला डांस है. चलिए एक काम करते हैं, वो जो डांस है वो हम बाद में, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि श्रद्धा जी आए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तालियों के साथ वेलकम करते हैं हमारे फिल्म के मेन लीड और सुपर डुपर स्टार राम कपूर. जोरदार तालियां हो जाए. यारा तालियां हो जाए everyone, come on. Hi baby. Hello Ram ji. Hi. How are you? क्या बात है. Well, people, can we make some noise for our leading star cast of film?
Okay, Ram, I was just conversing with her. मैं इनसे Yes. पूछ रही थी about the film, you know, how was the experience. मैं चाहूँगी कि आप भी दो शब्द कहें हमारी आपकी जो फिल्म है कुछ कुछ लोचा है इसके बारे में हमारी ऑडियंस से. हम सबको बहुत मजा आया शूटिंग ये फिल्म करने में एंड वी जस्ट होप द ऑडियंस इज गोना हैव एज मच फन एज वी हैड अ ब्लास्ट. मलेशिया में काम कब हुआ पता नहीं, सिर्फ मस्ती हो रही थी और साइड में फिल्म बस बन गई. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, ये मस्ती की अगर आपने बात छेड़ी है तो मैं चाहूंगी कि आप एक ऐसा मस्ती भरा इंसिडेंट यहाँ पे हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फनी था. क्या है ना वो वो मस्तियाँ ऐसी चीजें नहीं है जो हम इस वक्त सबके सामने बोल सकते हैं. ओके. लेकिन मजा बहुत आया. क्या बात है. अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे श्रद्धा पंडित को मैं फिर से एक बार स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी. राम एंड सनी प्लीज इस तरफ आ जाइए. श्रद्धा जी फिर से एक बार आ जाइए स्टेज पे. यस माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, एट इनऑर्बिट मॉल यहाँ पे वी हैव गॉट अ लवली स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म कुछ कुछ लोचा है. एंड चलिए, जी हाँ, श्रद्धा जी यहाँ पे है. श्रद्धा, फिर से एक बार गाना हो जाए कि हमारी स्टार कास्ट यहाँ पे है. जरूर, इस बार मुझे और जोश चाहिए. कम ऑन पीपल, आर वी रेडी? पानी वाला डांस हो जाए. प्लीज गिव इट अ वंस मोर फॉर राम कपूर एंड सनी लियोन. ये बात. And you're going to move a little with me. And That's you guys. I'll just watch. you have done so brilliantly. You're looking so good. I think the chemistry works so well. You have to do something. Come on. From the star cast of our film. तो चलिए, जी हाँ, क्या बात है. वेल, हमारे विनर्स, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के विनर्स आ गए हैं. एंड जी हाँ, इन्हें हमने प्रॉमिस भी किया था कि यहाँ पे जी हमारी जो स्टार कास्ट है इनके साथ इन्हें डांस करने का भी मौका दिया जाएगा. ओके, यस, आवर विनर्स आर हियर ऑन द स्टेज. विनर्स हैं एंड जी हमारे गिफ्ट हैम्पर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी. ओके पीपल, वन मोर थिंग. यस, बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमारे इनऑर्बिट मॉल को फॉर दिस लवली एसोसिएशन विद आवर फिल्म. थैंक यू सो मच टू स्लैश प्रोडक्शन. थैंक यू सो वेरी मच टू हैश एंटरटेनमेंट फॉर conceptualizing and managing the event. श्योर, जी हाँ, आप लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हो. अच्छा चलिए, साथ में जी हाँ, हमारे बहुत ही हैंडसम एक्टर भी है हमारे साथ, मिस्टर नवदीप छाबड़ा. इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. जी हाँ, नवदीप छाबड़ा भी हमारे इस फिल्म के वन ऑफ द लीड्स है. तो बेसिकली यहाँ पे वी गॉट ऑल 3 लीड्स आउट हियर. यार, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट विनर्स आ जाए यहाँ पे. हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट विनर्स तरुण वाधवानी और प्रिंस रहमान आ जाए. एंड यस, जी हाँ, दीज गाइज आर लकी पीपल जिन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था. एंड पार्टिसिपेट तो किया था, जी हाँ, ये जीत भी चुके हैं. अच्छा, आप लोग की आवाज़ नहीं जा रही है इन तक? यार, फोटोग्राफी में वेल आवाज़ चाहिए. ओके,
यस माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के लकी विनर्स हु गेट अ चांस टू कलेक्ट पिक्चर्स विथ सनी लियोनी एंड हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स भी है इन्हें देने के लिए। मैं चाहूँगी कि सनी और राम कपूर यहाँ पे इन्हें ये हैम्पर दें। सनी, वेल दिस इज़ फॉर देम, द विनर्स। साथ ही साथ वेल माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, हमारे इनऑर्बिट मॉल में भी एक एक्टिविटी हमने कंडक्ट की थी जिसके विनर्स हैं हमारे पास और इनके नाम है जयदीप पटेल, स्वप्निल मिस्त्री और संजना सबनिस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे तीनों विनर्स को कि स्टेज पे आ जाए, हमारे जयदीप पटेल, स्वप्निल मिस्त्री एंड संजना सबनिस को। Yo people, yes we are promoting कुछ कुछ लोचा है जो कि रिलीज हो रही है 8 मई को, and we have got this handsome actor of our film, one of the lead actors, Navdeep Chhabra, and यार okay. नवदीप जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए। थैंक यू। कैसे ये इरादा आया आपको कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है, काम करना है, और ये कब रहा- से आया ये रहा तो बचपन से था। ओह, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से जाओ कि मुझे एक्टर बनना है। हमेशा से दिल में था, इच्छा थी करने की। फिर जैसे आपको पता है मैं दिल्ली से हूँ, तो करने के बाद फिर पहले मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी। फिर अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने पूरा मतलब दे सपोर्टेड मी। उन्होंने कहा आप कर सकते हो, पर अपनी एजुकेशन पहले ख़त्म करिए ताकि मैं अपना को प्रूव कर सकूं कि मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो फिर उसके बाद मैं अपनी एजुकेशन ख़त्म करी। फिर आई डिड माई मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन यूके। फिर उसके बाद मैं वापस आया। फिर मैंने बॉम्बे आया मैं पहले, तो उसके बाद मैंने बैरी जॉन्स में पहले आई प्रैक्टिस, देन आई डिसाइडेड टू गो टू द यूएस। फिर वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। फिर उसके बाद घूम फिर के यहाँ आए, और 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ आए प्रॉपर्ली, जिसको बोलते हैं ना कि बॉम्बे में इंसान शिफ्ट होता है। मैं आया और मुझे पिक्चर मिल गई, जी, मतलब और अब मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। रिलीज हो रही मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हो रही है। ओह, वाह। तो मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा बहुत आपको। स्ट्रगल मतलब हर एक की ज़िंदगी में ना डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल होती है। हाँ, बट मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में काफी फास्ट स्ट्रगल हुआ, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। नहीं, मेरी ज़िंदगी में पिछले 5 साल से स्ट्रगल थी। ओह, पर वो स्ट्रगल, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, हर एक इंसान की एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल होती है। मेरी स्ट्रगल ये थी कि पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि मैं कुछ कर सकता हूँ अलग, नॉट व्हाट दे वांट मी टू डू। बट तो उनको कन्विंस करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। सो उनके लिए एक एक्टिंग करने के लिए उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ को रोका नहीं था। हर एक चीज़ की छूट थी मुझे करने की। पर आपको पता है ना, फिर फादर्स को कैसे आप बनाओगे जब तक आप अपना को प्रूव नहीं करते कि आप मेहनत कर सकते हो, और जो आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो आप पूरी लगन से करते हो, तो फिर उनको भी लगता है। तो फिर उन्होंने मुझे फिर परमिशन दी कि आप जाके बॉम्बे रह सकते हैं अकेले और काम करना शुरू करें। मैं आया और फिर मैं तो अभी तक, जैसे मैं आपको पहले कहा, मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि मेरी पिक्चर, मैंने शूटिंग भी कर ली है, मेरी पिक्चर आ भी रही है, और मैं आपके सामने फिर गेट टू यू दे रहा हूँ। बिल्कुल, कुछ कुछ लोचा है। हाँ जी। राइट, तो कुछ बताना चाहेंगे आप हमें इस फिल्म के बारे में, आपके किरदार के बारे में? हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक इट्स अ कॉमेडी फिल्म, ठीक है। एंड लोग जो बोलते हैं कि इट्स अ सेक्स कॉमेडी, इट्स नॉट अ सेक्स कॉमेडी, इट्स अ सेक्सी कॉमेडी। इट्स सेक्सी बिकॉज देयर आर सेक्सी पीपल इन द फिल्म, यू नो। देयर इज सनी लियोन, जो आपको बताइए, बिल्कुल, सर। इट्स वेरी सेक्सी। देन
अब मैं भी हूँ तो मैं भी अपने आप को सेक्सी मानता हूँ Sure, आप sexy तो हैं। एंड देन there's राम कपूर, ही इज सेक्सी इन हिज ओन वे। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए। कॉमेडी करना बहुत मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अगर आप मुझे देखेंगे कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर बचपन से कॉमिक एक फ्लेयर था जो मेरे दोस्त कहते थे कि तेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। तो जब मैंने पिक्चर शुरू करी, जब डायरेक्टर साहब ने बोला कि आई वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर, तो फिर मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। फिर वर्कशॉप्स हुई तो फिर मुझे समझ आया कि मैं कर सकता हूँ। फिल्म बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मेरे लिए एज एन एक्टर भी बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि व्हेन यू हैव अ ग्रेट एक्टर लाइक राम सर आपके सामने है, तो पहले तो क्या उनके सामने आप कैसे एक्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको डर तो लगता ही है। और दूसरी तरफ हॉट एंड सेक्सी सनी लियोनी हॉट एंड सेक्सी सनी लियोनी, तो आप तो मतलब नॉर्मल आम आदमी तो वैसे ही घबरा जाएगा कि करेगा कैसे, उसके रिएक्शन होंगे। पर उनका बहुत सपोर्ट था मेरे साथ। राम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सीन्स के बीच में आके मुझे बताया उन्होंने कि ऐसे कर तो ये फ़र्क पड़ेगा। और मुझे अभी भी याद है जो मेरा पहला दिन था शूट का, तो सबने ना मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था कि राम सर है, उनका आपको पता ही है रैगिंग वैगिंग होती है जो नया लड़का आता है, तो डर भी था। ऐसी कुछ रैगिंग हुई आपके साथ? मैं बहुत क्या बोलूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी कोई रैगिंग ऐसा हुई नहीं, बिकॉज उनको दिखा कि लड़के में मतलब यू नो लाइक ही रियली सपोर्टेड मी इन अ वे कि उनको लगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे रादर देन टेकिंग अ केस ऑफ मी, ही सपोर्टेड मी एंड गाइडेड मी टू द करेक्ट वे। बाकी थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही रहता है, जैसे मुझे प्यार से लौंडा बुलाते हैं, हमारी दिल्ली में एक टर्म है लौंडे, तो उन्होंने वो मुझे लौंडा बुलाना शुरू कर दिया तब से। बस पर उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, वो नहीं मिल सकता था किसी को। और सनी लियोनी? सनी लियोनी, pleasure to work with her, pleasure. All I can say is that she's a superb co-actor. उनके साथ डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन है। मतलब अगर आप उनके साथ रहोगे और आप उनके साथ काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ किस तरीके की डिसिप्लिन एक्ट्रेस है। कि लाइक अगर जैसे फॉर न्यू कमर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें लर्न करें कि आप सेट जैसे कॉल टाइम है तो कॉल टाइम पे आप कितने बजे पहुंचना चाहिए। जब आप देखते हैं कि आपके जो एक्टर्स हैं वो आपसे मतलब आपसे पहले पहुंच रहे हैं या कॉल टाइम पे पहले पहुंच रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें लर्न करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप मतलब शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी गोज टोटली इनटू द सीन। एंड बेस्ट बात ये है कि उनमें कोई स्टारी एटीट्यूड नहीं है। जब आप एक फर्स्ट टाइम काम करते हैं ना तो आपको एक लगता है कि यार यू वर्किंग विद अ स्टार, बट ऐसा कुछ नहीं था। शी इज़ अ फ्रेंड एंड शी इज़ रियली सपोर्टेड मी थ्रू आउट। और कुछ कुछ लोचा है कि हाँ जी। अगर मैं बात करूँ, एक फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है हाँ जो जी। कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर थी, हाँ और जी। अब आप लोगों की एक फिल्म आ रही है कुछ कुछ लोचा है। हाँ जी। तो कुछ काफी प्रेशर रहेगा आप लोगों के ऊपर, बिकॉज एक फिल्म कुछ कुछ होता है काफी सुपरहिट थी और अब आप लोग बना रहे हैं कुछ कुछ लोचा। सर, मेरे हिसाब से ये- आप प्रेशर हैंडल करते हैं इस तरह का? आप पर्सनली अगर आप बोलो तो Person- मेरी तो फर्स्ट फिल्म है, सो वेदर कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ लोचा है तो मेरे को तो प्रेशर हो गई। बिल्कुल। तो फॉर न्यू कमर देयर इज ऑलवेज प्रेशर, बट कुछ कुछ होता है वाज अ सुपर्ब फिल्म। मतलब आप उसके साथ मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि आप उनको हम कंपेयर कर रहे हैं या कुछ है, वो हो नहीं सकता, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फिल्म। वो एक हार्डकोर रोमांटिक फिल्म थी, ये दिस इज अ सेक्सी कॉमेडी। सो बट हाँ, प्रेशर अगर आप बोले तो नॉट बिकॉज ऑफ द टाइटल बट बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फिल्म, सो वो प्रेशर तो रहता ही है हमेशा। जी, जब तक आपकी पिक्चर आए आपको पता नहीं होता कि ऑडियंस आपको लाइक करेगी कि नहीं करेगी। मेन तो ऑडियंस के ऊपर है। इफ दे लाइक यू देन यू आर हिट, इफ दे डोंट लाइक यू देन यू हैव टू वर्क हार्डर सो दैट दे लाइक यू। Sure, sure. अब आप डेब्यू कर रहे हैं तो आपसे हक बनता है सवाल पूछने का कि हर एक एक्टर का सपना होता है कि वो जब भी फिल्म में डेब्यू करे तो उसकी फिल्म रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो। हर किसी का अपना अपना ये। आप जो फिल्म जिस फिल्म से आप डेब्यू कर रहे हैं, क्या आप अपनी उस फिल्म से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं आप अपनी फिल्म से? देखिए कुछ और करना, डेब्यू में कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और हो रहा है? हाँ जी, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, मैं एक माइंडसेट से आया था कि मेरा कोई वो नहीं है, मतलब मुझे कुछ अपना मैं कोई माइंडसेट से नहीं आता कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ या मैं खराब कर सकता हूँ। आई लेफ्ट इट ऑन द डायरेक्टर, सर दिस इज मी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे बताइए क्या काम करना, कैसे मैं क्या करूँ।
तो हर एक की इच्छा तो होती है कि आपको एक ऐसी फिल्म मिलनी चाहिए, या मतलब आप अपने आप को देखते हैं कि आप ऐसा काम करते हुए, पर मेरा कोई फिक्स नहीं था, मैं आज भी फिक्स नहीं हूँ। अगर कोई मुझे क्या पता, मैं अपनी एक नज़र से किसी अपने आप को एक तरीके से देखता हूँ, पर कोई और डायरेक्टर साहब या कोई और मुझे एक डिफरेंट व्यू से देख सकता है कि दिस गाय कैन प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर। सो आई एम नॉट रिजिड कि मुझे यही काम करना है या मुझे ऐसा ही दिखना है या मुझे ऐसे ही रोल्स करने हैं, नहीं मैं ऐसा मतलब आई एम ओपन। अगर कल को कोई मुझे ऑफर मिलता है कोई भी रोल करने के, रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर, नेगेटिव कैरेक्टर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले। बट मतलब मैं तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कॉमेडी फिल्म ना, मतलब फर्स्ट फिल्म एज अ कॉमेडी फिल्म, इट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू इन अ वे दैट, पहली बात ये होती है कि ऑडियंस को कॉमेडी वैसी पसंद आती है, तो वो पूरा जो एक होता है ना कि प्रेशर होता है कि एक नया लड़का आ रहा है, उसके ऊपर उसकी कैसे वो एक्टिंग करता है, कैसे वो क्या करता है, एंड उस वे से मुझे जो लगता है कि आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे दिवांग सर मिले और मुझे ऐसे को स्टार्स मिले जिनकी वजह से मेरी फिल्म काफ़ी अच्छी, मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, बट जिसे कहते हैं कि हमेशा देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मैं करूँगा ही। तो अब बॉलीवुड में आप इंडिया आ रहे हैं, तो फेवरेट फीमेल एक्टर, फीमेल एक्टर Anushka Sharma is Anushka Sharma. yeah, is a great actress, superb actress. I really like the way she's grown. उनकी फर्स्ट फिल्म से आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। एंड देन रेखा जी इज माय फेवरेट। रेखा जी हैज बीन माय फेवरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर मेल एक्टर की बात करें, मेल एक्टर सारी फेवरेट है यार ऐसे में क्या बताऊं, बट अगर आप किसी को जो आई रियली एडमायर शाहरुख खान, बिकॉज अगर आप देखें तो एक वो दिल्ली का कनेक्शन है, सेकंड दिल्ली का कनेक्शन है, फिर उसके बाद एक उन्होंने सब कुछ खुद अपने बलबूते पे बनाया, नो गॉडफादर नथिंग, अपनी मेहनत से अपने बलबूते से बनाया। तो मेरे हिसाब से जब एक इंसान के पास कोई बैकिंग नहीं होती या कोई मतलब एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जैसे इंडस्ट्री में अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, और फिर जो जिस तरीके से उन्होंने काम करा है और जहाँ वो पहुँचे हैं आज, तो मेरे लिए तो शाहरुख खान ही है जी फेवरेट। तो कंट्रोवर्सी में घिरे रहना पसंद करते हैं आप, या फिर नहीं इन सारी चीज़ों से दूर रहना है सिर्फ, मतलब आप सर पहली फिल्म मुझे तो पता नहीं कंट्रोवर्सीज कैसी होती हैं, क्या होती है, मतलब पता नहीं, जब मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगा तब आप मुझसे पूछना कि कैसा ऐसा मैं कर सकता हूँ, कैसे, मुझे तो पता नहीं है कि कैसे उसको हैंडल करना है। बट आई डोंट, कंट्रोवर्सी में पढ़ना एक अलग बात होती है, और एक होता है कि आप जबरदस्ती पढ़ना चाहते हैं कंट्रोवर्सीज में, दैट इज नॉट मी, मैं वो नहीं काम करूँगा। आई एम मोर ऑफ एन ऑनेस्ट पर्सन, अगर मैंने कुछ करा है या मैंने कुछ बोला है तो मैं उसको एडमिट करूँगा, पर मुझे कुछ ऐसे मतलब आई डोंट वांट टू यूज the controversies for my publicity or for the publicity of the film. That is something which is not in me. वो मेरा कैरेक्टर नहीं है। जो जितने भी लोग मुझे अभी तक जानते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हुए, चाहे वो मेरी फैमिली हुई, तो सब जानते हैं कि मुझसे मैं वो नहीं कर सकता। होता नहीं कि इंसान के अंदर कि आपके बचपन से आप एक तरीके से पले बड़े होते हैं, तो वो है नहीं। कोई मुझे बोलता भी तो मुझे अजीब लगता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करूँ। और हमने नोटिस किया है कि जो आजकल की जनरेशन के जो एक्टर आ रहे हैं वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो एक्टर भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, डांसर भी होते हैं। तो एक्टिंग के अलावा और क्या क्या आता है आपको? डांस आता है जी, बिल्कुल। सिंगिंग मैंने सिंगिंग में कभी इतना जोर दिया नहीं जी, पर अगर मौका मिलेगा तो कर देंगे। ऐसे ही कोई मतलब आई एम ओपन टू एवरीथिंग, मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे होता है, पर सिंगिंग नहीं, बट मार्शल आर्ट्स हो गया आपके, फिर फिटनेस रिजीम्स हो गए, उसके बाद सिंगिंग इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। मुझे लोग कहते थे कि मुझे सिंगिंग ट्राई करनी चाहिए, वो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, आई एम अ बाथरूम सिंगर, बट वैसे मैंने अभी तक कुछ ट्राई करा नहीं है, पर अगर आगे मौका मिला ज़िंदगी में तो क्यों नहीं। अब जैसा कि फिल्म की रिलीजिंग डेट भी आ गई है, तो दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को? मैं भी उसको बस ये कहूँगा कि जाके देखिए, सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी फिल्म है, लाइट फिल्म है, आपको मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि
एंड इट्स नॉट स्टूपिड कॉमेडी, इट्स सिचुएशनल कॉमेडी, मतलब जबरदस्ती की कॉमेडी नहीं थोपी गई है। जब आप देखेंगे आप उसको, उसमें आप रिलेशनशिप्स देखेंगे बिट ऑफ द फादर एंड द सन, बिटवीन द मदर एंड द सन, तो आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। मतलब इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड फनी कॉमेडी। घर वालों को कुछ मतलब दिखाया या उनको फोन करके बताया आपने कि डैडी मम्मा मेरी फिल्म आ रही है 8 मई को आएगी आप देखो, या ऐसे कुछ बातें हुई, या मैं फिल्म कर रहा हूँ इंडस्ट्री में आ गया हूँ, आने के बाद मुंबई में आने के बाद बातें हुई आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल। उन्हें पता है कि आप फिल्म कर रहे हैं, आपकी फिल्म आ रही मेरी है? मम्मी तो मेरे साथ ही रह रही है फिलहाल। अच्छा, डैडी को पता है कि डैडी आपकी को भी फिल्म आ पता रही है, सबको पता है, सब बहुत खुश हैं। उन्होंने कुछ एडिट्स भी देखे हैं थोड़े बहुत बेसिकली। तो मतलब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर आप अपने आप को कैमरा में देखते हैं, अगर आप आपको स्क्रीन में देखते हैं, तो आप रियलाइज नहीं करते हैं कि ये एक्चुअली आप हैं। पर जब दूसरा बंदा कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है। पर जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि मेरी पिक्चर आ रही है और रिलीज भी हो रही है, क्योंकि ये एक सपना था। आप समझ रहे हैं, एक इंसान अपना एक सपना बनाता है, वो करते 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 एकदम से पूरा हो जाता है, तो पता नहीं कि वो कैसे पूरा हो गया। आई कैन जस्ट थैंक गॉड, दैट्स इट, जो है भगवान की वजह से ही है। ओके, थैंक यू Thank you. सो मच। आप दोनों का किरदार इस फिल्म में कैसा है? You start, I'll Ladies start? first, आप ladies first. Okay, I play the role of Nana. She's the girl next door of Ram Kapoor's family, who plays Praveen Patel in the movie. Navdeep plays her son Jigar, and we are a couple in the film. Nana is in love with Jigar, and together they have a rock band, which is called Jigar and the Jets. It's called Jiggy and the Jets. Jiggy and the Jets. And both of them have this dream of becoming rock stars one day. And her dream also is to marry her boyfriend. She just wants to marry this guy and have a happy life with him. But the family of Ram Kapoor is very traditionally Gujarati. And she is a NRI Punjabi who lives in Malaysia. All of them live in Malaysia, but the two of them have grown up in Malaysia. While of course Praveen Patel and his wife have not. So they are very traditional Gujaratis, and they are not happy with him dating this Western girl from next door. So Nana always tries to, even though she's a Western girl and she speaks Western, she behaves like a Western girl, she dresses like a Western girl in shorts and she goes swimming in a bikini. She still she wants to be the good daughter-in-law, and she wants him to see that even though she's a Western girl, she can still be a good daughter-in-law. So she tries to fit into the family. She tries to make conversation with the mother, and she tries to fit in. And luckily for them, one day Ram Kapoor's secret is revealed, that he is secretly in love with this Bollywood actress Shania, who's played by Sunny Leone. And when Jigar and Nana find out, they have this big thing on him. Now we are going to blackmail him. He's going to let us become rock stars. He's going to let us get married. But of course, Praveen Patel is not that easily convinced until he really gets into the locha is starting and it's taking over, and the craziness of the story just evolves to another level, that he becomes so desperate that he needs Jigar and Nana to play his parents in front of Shania. So we have a double role in the film where we also play the Gujarati grandparents, the parents of Ram Kapoor. And that was for me a huge challenge, of course, as an actress, to play a Gujarati grandmother. And it took us 15 hours to get into the first look of the old avatar. And Nana uses now this opportunity to try and prove that she can even be his mother. Okay, instead of his daughter-in-law, he can even be his mother. So she's kind of trying to convince the whole family that she's a good wife material for Jigar. And if they're going to get married and if they become rock stars, that you will see on 8th of May. एवरी ने तो पूरी स्टोरी बता दी। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा मैं तो ऐड Give it all away. करता हूँ। So basically इसमें क्या है, I'm playing Ram sir's son. तो there's a hate and love relationship. हर एक के पेरेंट्स के साथ ना एक वो रहता है कि you want to be on top of your father and your father wants to be on top of you. There's always this chemistry going on and वो मस्ती मजाक चलता रहता है. So एक दिन जब हमें पता चलता है कि when I get to know that he has this whole thing going on, लोचा going on, so he comes from and मुझसे वो पूछते हैं कि if I can help him.
तो तब मेरी 3 कंडीशंस होती हैं। एक, मेरे रॉक बैंड को आप प्रमोट करेंगे। सेकंड, आप मेरी नैना से शादी कराएंगे। और तीसरा, अगर मैं आपका बाप बनूंगा तो नैना आपकी माँ बनेगी। तो उसके बाद वो जो पूरा लोचा शुरू होता है उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है। एंड आपको ये हर एक ऑडियंस को सपोर्ट, मतलब ऑडियंस जाके देख सकेगी, क्योंकि हर एक की आम जिंदगी में होता है। आप किसी भी लाइक अगर डैड और फादर के बीच में अगर आप देखोगे और फादर सन में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है, तो आपको वो दिखेगा कि हम कैसे मजे ले रहे हैं। हम लोग वी प्लेइंग 65 ईयर ओल्ड्स, बट कभी कभार आप हमें देखेंगे कि हम 65 ईयर ओल्ड दिख रहे हैं पर हम बिहेव वैसा नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, लोग मुझसे मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा ये सेक्स कॉमेडी है या ये वो है। मेरे हिसाब से ये फैमिली कॉमेडी है और ये सिचुएशनल कॉमेडी है जो लोगों को समझ आएगी, जो लोग हंसेंगे। जैसे अगर आप भी उस सिचुएशन पे होंगे, अगर मेरी जगह आप होंगे तो आपको भी हंसी आएगी, आप भी वही वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे मैंने या इसने रिएक्ट किया। सो इट इज़, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मूवी है एंड यू नो आई एम प्लेइंग अ 25-year-old एंड आई एम प्लेइंग अ 65-year-old। और क्या चाहिए व्हेन यू कैन शो 2 aspects of your, you know, of yourself, and you're able to explore that acting part of your inner self. It's something which is like a dream come true. और हाँ, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, बाकी तो मैडम ने बोल दिया है। लोचे की बात हो रही है, लोचा हो रहा है, तो आप दोनों का लोचा सनी लियोनी से कहीं ना कहीं होता है कि नहीं होता है ऐसा कुछ? नहीं, आप कैसे लोचे की बात पूछ रहे हैं? किसी भी तरह आप कौन से लोचे की बात पूछ रहे हैं? आप दोनों कपल हैं, हाँ। सनी लियोनी के साथ कभी इंटरेक्ट See, of course, yeah, of उनके course. साथ कुछ होता है? हाँ, मतलब लोचा इन द सेंस कि लोचा ऐसा नहीं होता है, मतलब हम सब एक ही पार्ट के ग्रुप के हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग है या हम अलग हैं। वी आर ऑल टुगेदर। हमने बल्कि हम चारों ने मिलकर दूसरों के साथ लोचा करा है। See, the story, everyone has an impact in the other person's story. So, of course, Shania, Sunny Leone has a big impact on our life, as we have on Ram Kapoor, as we have on her, as Ram has on us. So, it's that whole comedy just goes round and round until like that point where it's going to explode, and what is going to happen then? If everyone finds Basically, आप out. देखोगे ना पिक्चर, तो without her I am not complete. Without me, Ram's character is not complete. Without Shania, Ram's character is again not complete. Without Shania, we are not complete. So we are all interdependent on each other. तो ऐसा नहीं लिंक मिलेगा आपको जब आप मूवी देखेंगे। राम कपूर ऐसे एक्टर किस तरह का उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा आपका? You want to go first or should I go first? Yeah, it was really nice. I mean, you know, making comedy movies, the best thing is that like all these people on set are really funny, and even though it's cut and you're not shooting, everyone is cracking a joke because they're all comedy actors. They're all very spontaneous, and it's always fun to be on a set where there are so many characters and so many different cast. And all of them are so powerful. I mean, there are the 4 lead characters, of course, but there are more characters to the story. There are like lots of individual fun characters, and it was just a blast for us, obviously with Devang sir as our captain of the ship, and we had as much, if not more, fun offset all together than while shooting. So we are hoping that there will be a behind the scenes, lots of videos for everyone to see. सो देखिए, जब आप राम सर के साथ एक्टिंग करते हैं ना, तो आपको एक तो पहले आप वैसी टेंशन में होगी आप राम सर के सामने हो, बिकॉज इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, एंड इफ़ यू डूइंग कॉमेडी विद हिम, सो देन ही इज़ वेरी गुड इन कॉमेडी, हिज कॉमेडी टाइमिंग इज़ वेरी गुड, बट देन ही मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन एंड ही गाइड्स यू। लाइक मेरे लिए, मैं आज बोल सकता हूँ, मेरे मेंटर है वो, मेरे आज बड़े भाई हैं वो, मैं उनको कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आपको कि आपकी कॉमिक टाइमिंग क्या, आपकी हर एक टाइमिंग अच्छी होगी। तो इफ़ यू वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ एन एक्टर, तो आपके अंदर से भी आवाज़ निकलती है कि आपको यार परफॉर्म करना है, सो दैट द सीन डजंट गो डाउन। सो ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल, एंड विद ऑल द मस्ती मजाक एक चीज़ होती है, पर जब आप एक्टिंग कर रहे हैं व्हेन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, एंड यू हैव टू, एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे अगर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा सर के किसी डायलॉग पे या किसी भी मेरे को स्टार के डायलॉग पे, तो वो इट्स लाइक ही इज एक्टिंग टू अ वॉल। बट देन अगर आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती है और आप इफ़ यू नो ईच अदर वेरी वेल, आपकी एक पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फाइनली जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? कुछ लोग चाहें इन योर ओन लिटिल वर्ड्स, ऑल द वे। Well, if you are looking for a really good comedy movie, and I think it's been some time since there has been a crazy comedy on in the theaters, this is your chance to escape the harsh world and the hectic reality. Just go on 8th of May, watch Kuch Locha Hai, and just escape the real world for 2 hours and enjoy. I think it's a very light-hearted film.
आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने बच्चों, माँ बाप, दादा दादी सबके साथ जाके देख सकते हैं, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ है इस फिल्म में। तो जब आप जाएंगे, जस्ट आप अच्छा सा पॉपकॉर्न खाइए, सैंडविचेस खाइए, पेप्सी पीजिए एंड एन्जॉय द फिल्म, क्योंकि हम सबकी बहुत मेहनत है, मेरी भी बहुत मेहनत है, मेरी फर्स्ट फिल्म है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक यू। विश यू बोथ ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुजराती बिजनेसमैन हूँ जो मलेशिया में बेस्ड हूँ। सब कुछ अच्छा है मेरी ज़िंदगी में, काम अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी है, बीवी है, बेटा है, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन मेरा एक सीक्रेट है कि मैं एक बॉलीवुड स्टार के पीछे एकदम पागल हूँ, उनका बहुत क्रेज़ी फ़ैन हूँ मैं। दिन रात उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। और फिर वो मलेशिया में आती है शूटिंग के लिए, और कैसे हम लोग मिलते हैं, वो मेरे घर में आती है और सारे लोचे शुरू होते हैं। फर्स्ट टाइम आपने सनी के साथ काम किया तो कैसा केमिस्ट्री रहा आपका? बहुत अच्छा, वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल, बहुत मस्ती खो रहे हैं, बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में। उसको भी मस्ती पसंद है, प्रैंक्स खेलना, मुझे भी। तो वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेरी वेल, काम भी अच्छा हुआ है और दोस्ती भी बहुत अच्छी हुई। वी हैड अ वेरी गुड टाइम। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा बताइए जिसको आप अभी याद करते हैं और बहुत काफ़ी मस्ती की हो? ऐसा कोई एक लम्हा नहीं है, हर दिन मस्ती होती थी, हर दिन हम लोग पागलों की तरह हंसते थे। कभी कभी सीन के बीच में हम लोग को रोकना पड़ता था शूटिंग, क्योंकि या तो वो हंस रही है या मैं हंस रहा हूँ या डायरेक्टर हंस रहा है। सो द होल एक्सपीरियंस वाज क्रेजी। तो शूटिंग के दौरान सनी ने आपको कितना परेशान किया? बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्रोफेशनल है, तो परेशान क्यों करेगी? अच्छा, आपने कितना परेशान किया पूरी जो स्टार कास्ट थी फिल्म? कि मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया, मस्ती बहुत करता था और लोगों को हंसाता बहुत था, बट परेशान तो नहीं किया। किस तरह की मस्ती, कुछ एक किस्सा बताना? नहीं बता सकता, सब नॉनवेज है। बिल्कुल देख सकती है, ये एडल्ट कॉमेडी नहीं है, सेक्स कॉमेडी नहीं है, ये फैमिली कॉमेडी है। बच्चों के साथ मत देखिए, लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माँ बाप के साथ ज़रूर देख सकते हैं। फैमिली कॉमेडी है, अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हो, बड़े बुजुर्ग के साथ देख सकते हो। देयर इज़ नथिंग दैट विल मेक यू ऑकवर्ड। बहुत क्लीन फिल्म है और फैमिली फिल्म है। सॉरी। साथ में एवलिन शर्मा भी है। जी, कौन है एवलिन शर्मा? कौन है वो? तू है? अच्छा, ये है एवलिन शर्मा। हाँ, क्या बोलो उसके बारे में? हाँ, कुछ बताइए। हाँ, है, खूबसूरत है, तो क्या हुआ? व्हाट्स द बिग डील? शी इज अ डार्लिंग। बहुत देख, मैं मोटा नहीं हूं, मैं मार खा खा के सूझ गया हूं। शी इज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आया। शी इज मेरा ज्यादा इंटरेक्शन तो सनी के साथ ही था, इसके साथ कम था, बट शी इज ग्रेट फन। अभी आए थे नवदीप छाबरा, उनके साथ गधे की दुम। हाँ, आपकी किससे रात केमिस्ट्री? नथिंग, मैं एक आदमी हूँ, वो एक गधे की दुम है, तो एक आदमी और गधे की दुम के बीच में क्या केमिस्ट्री हो सकती है? वैसे ही है, वो अच्छा है, मेहनती है, ही वांट्स टू वर्क हार्ड। तो हम लोग ने थोड़ा एडवाइस किया, थोड़ा गाइड किया, बट बहुत अच्छा लड़का है। राम पिछले कुछ कॉमेडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं इसके बाद एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ जो बहुत सीरियस है, ट्रू स्टोरी है, उड़ान टाइप की फ़िल्म है, बहुत सीरियस ट्रू स्टोरी है अबाउट अ फैमिली, उनके साथ क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडीज़ करूँगा। तो फिलहाल 2-3 स्क्रिप्ट ऐसे आई कि माई लास्ट 2-3 रिलीजेज हैव बीन कॉमेडीज़, बट मैं इसके बाद 3 फिल्में शुरू कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक कॉमेडी है। वन इज़ एन एक्शन थ्रिलर एंड द अदर इज़ अ वेरी सीरियस ट्रू स्टोरी। तो वैरायटी दिखेगी आपको अगले साल, डोंट वरी। I would love to work with Sunny even 10 times more. She's become such a good friend and we have so much fun working together कि उनके साथ जितना भी मौका मिलेगा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है मैं ज़रूर करूँगा। और हाँ, एक और फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा इस वक्त मैं बता नहीं सकता। द डायरेक्टर विल अनाउंस इट आफ्टर दिस रिलीज। लोगों को पसंद आई है? यार, बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है। कुछ हम लोग सिनेमा को रीडिफाइन नहीं कर रहे, कुछ प्रीचिंग वीचिंग नहीं कर रहे। वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट
अ वेरी लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी. अगर आपको 2 घंटे अपने परिवार के साथ थोड़ा हंसना है, थोड़ी मस्ती देखनी है तो ज़रूर देखिए. कुछ मैसेज दे रही है मूवी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा 8 को इसके साथ ही पीकू भी रिलीज होने वाली है, हाँ. ऑल्सो स्टार स्टडेड. या तो कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन इस तरह का कुछ लगा? आई डोंट थिंक सो यार. हमारी ऑडियंस और पीको की ऑडियंस बहुत अलग है. आई थिंक ना पीकू हमारी बिजनेस को इफेक्ट करेगी, ना हम पीको की बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी डिफरेंट एंड वी आर वेरी डिफरेंट ऑडियंस. एंड आई विश पीकू ऑल द बेस्ट. मैं तो चाहूँगा कि पीकू भी एज सक्सेसफुल एज पॉसिबल हो, एंड सो डू अस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे if more films are successful is better for our industry. So I will wish all the best for Piku. I'm a very big fan of Bachchan Saab. I'm a very big fan of Deepika and of Irfan. So मैं Piku जरूर देखूंगा, and I wish it does really really well, and I wish that we also do really well. I want films like this also to work, films like Piku also to work. So I wish all the best to Piku definitely. बस यही जो मैंने कहा यार, अगर आपको 2 घंटे थोड़ा हंसना है, थोड़ी मस्ती देखनी है अपने परिवार के साथ, प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म. देयर इज नथिंग वल्गर, बहुत क्लीन फिल्म है. आई प्रॉमिस यू दैट आपको मजा जरूर आएगा. प्लीज डू गो एंड वॉच 8th में. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आई एम अ वॉकिंग टॉकिंग लोचा. बहुत सारे लोचे हैं. फिल्म देखोगे तो पता चलेगा. सनी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या लोचे हैं राम कपूर के साथ? Actually, मेरा character doesn't really do a lot of लोचा. उसके आजू बाजू लोचा होता है. राम्स कैरेक्टर प्रवीण पटेल वो लोचे क्रिएट करते. उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, they all create all these different लोचेस that happen around my character. राम अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का है ये किरदार? मैं गुजराती बिजनेसमैन हूँ, मलेशिया में बेस्ड हूँ. फैमिली है, बीवी है, बच्चा है, सब अच्छा है लाइफ में. बट मैं ऑल्सो सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हूँ बॉलीवुड स्टार शनाया के पीछे, विच इज़ प्लेड बाय सनी. पूरी तरह ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब आई एम अ क्रेजीएस्ट फैन. एंड फिर कैसे वो शनाया आती है मलेशिया फॉर अ फिल्म शूट, एंड हाउ वी मीट, एंड शी एंटर्स माई हाउस, एंड ऑल द कॉमेडी बिगिन्स, ऑल द लोचास बिगिन. टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. मेरा कैरेक्टर का नाम है शनाया, and she's a Bollywood diva in this movie. She's an actress, and she has this meeting with a director, and she's making this movie where she has to be a typical Gujarati housewife, typical Gujarati bahu, and she has this date contest, and ये लोचा create करके वो date win करता है, and we go on a date, and in that date मुझे ऐसा लगता है दैट वो मुझे हेल्प कर सकता है. वो गुजराती है, उसकी फैमिली गुजराती है, एंड ही कैन हेल्प मी लर्न अबाउट द गुजराती वे फॉर माई कैरेक्टर इन द मूवी दैट आई विल बी इन. एंड दैट्स हाउ आई एंटर द हाउस, एंड दैट्स रियली व्हेन द लोचा बिगिंस. आप दोनों ने किस तरह मस्ती की ऑन द फिल्म सेट? किस तरह का खास प्रैंक या कुछ? हमने बहुत मस्ती की इस फिल्म में. हाँ, एवरी डे समथिंग और द अदर. कुछ एक प्रैंक के बारे में नहीं बता सकता, बिकॉज पूरे फिल्म शूट शुरुआत से लेकर एंड तक इज नथिंग बट नॉन स्टॉप मस्ती. बहुत मजा आया. हम दोनों एक दूसरे से करते थे, या हम लोग गैंग अप करते थे किसी और पे. एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट अस. इस सेट में बाकी के लोग भी बहुत मस्तीखोर हैं. सो इफ यू लुक एट लाइक से द डायरेक्शन टीम, द डायरेक्टर इज ऑल्सो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. Sunny, we have another Sunny who's our associate director. His name is also Sunny. वो भी पागल है. ये फरीद कहाँ है? फरीद भाग्यशाला. वो भी everybody, the whole unit is like that. Yeah. So you know, We're all friends. somebody would be pulling somebody's leg at any given point in time. How was the experience working with Ram Kapoor? He has done many films and you're working with him for the first time. हाँ जी. जब मैंने सुना that it's going to be Ram Kapoor who's going to be playing Mr. Patel, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि first time in my career I'm working opposite somebody who's so experienced. Not the first time, but you know, I'm getting to work with somebody who's so experienced. And जब आप ऐसे actor के साथ जो इतना experience है, you learn so much as well. And they also make you look a lot better on screen when they know what they're doing. And not only that, the experience, and you would tell me certain things about acting and his experiences. वो बहुत अच्छे इंसान हैं. And with that also, हमने बहुत मस्ती किया. We got along very well. And after our first meeting, I knew that ये जो
connection जो हो रहा है for this movie, it's gonna be something that I think we'll be friends for a very very long time. And मैं बहुत खुश हूँ. We had so much fun. My favorite, most fun film is this film. Same here. I agree. I fully agree. आप कुछ तारीफ करना चाहेंगे सनी लियोन के बारे में? यार मैंने जब हाँ कहा इस प्रोजेक्ट के लिए आई न्यू आई एम गोइंग टू वर्क विद समबडी हु इज नॉट ओनली वेरी हॉट एंड सेक्सी बट आल्सो वेरी मच इन डिमांड in Bollywood these days. Like this is her time after Ragini MMS. You know, she's suddenly her time has begun. So I knew all that. But what I was not expecting was how hardworking she is. See, if somebody is as hot as she is, or as much as in demand as she is, it's easy to rest on that. It's easy to say, "Yeah, I'm in demand anyway. I don't need to put in the work because I look the way I do." Right? But she's not like that, which was a surprise. She is going to work harder than you on the project, on any area where she knows, like for example her Hindi or her dance or any area where she is not as comfortable as she'd like to be, she's going to work and work and work till she becomes that way. This I was not expecting, which was a very pleasant surprise. Now when you work with somebody who is this hardworking, work becomes very easy because you're prepared, that person is prepared, so it happens fast, it happens without problems, it happens without any issue, which is why I think we had more fun together, because all the little teething problems that one goes through in getting to know one another or getting to know the project were just not there. And I think credit goes to her. She's really put in the work, which is awesome to see. तारीफ सुन रही हैं आप? राम कपूर इतनी तारीफ कर बाद में पैसे लूंगा आपसे. हाँ मेरे पास है. क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके किरदार को जो अच्छा है? Well, it's like I was saying earlier, जब आप किसी के साथ काम करते हो and they're so experienced in life, in Bollywood, in acting, in everything, you learn so much. कितना सीखना वो chance मिलता है. And he's a kind person, he's a nice person, and he's so funny. And जब हम, you know, like that first day of set, you know that you're meeting somebody new. आपने उसके साथ काम कभी किया नहीं. We've never hung out at parties or an event or anything, nothing like that at all. And you never know कैसे होगा, क्योंकि you don't know how people's personalities are, और अगर आपके personalities clash होंगे, and अगर वो first day में clash होता है, then पूरा time ही ऐसे निकलता है that it just doesn't work. And वो ऐसा हुआ नहीं. And we all got along, and Ram and I got along right from the very beginning. And I remember just, it's the first set that just everything just went perfect, and Yeah. everybody got along, and there were no issues of this person's late or ye kar raha hai, ye wo, you know, none of that was going on. And we became friends, and I think hum aise pura life mein aise friends will be friends forever. One thing, जब ये स्क्रिप्ट आपने पढ़ी थी, what was the first reaction? You wanted to do this film, you were waiting for the right project. What exactly it was? Actually, something people don't know is मैंने ये script, I read this maybe a couple of years ago, and I signed this movie maybe a year and a half ago something, and from day one I liked this script. मुझे ये script बहुत अच्छा लगा. Because it was funny, it was light-hearted. It wasn't like some of the other movies that I've done. ये मेरा first comedy film है. मैं हमेशा से comedy film करना चाहती थी. So I liked it right away. And then when I heard that Ram is Mr. Patel, then it just made sense. It couldn't have been the most perfect Mr. Patel that he could ever have chosen. आप फिलहाल कुछ सालों से काफ़ी कॉमेडी फिल्म्स कर रहे हैं और ये एक और कॉमेडी फिल्म, किस तरह से ये ऑन बोर्ड आई? आप सोच रहे थे कि यू जस्ट वांट टू ग्रो विद कॉमेडी फिल्म्स और प्लानिंग समथिंग एल्स आल्सो? No, no actor only wants to do comedy films. It's just happened that my last few releases have been comedy because Hum Shakals was comedy. Before that, Mere Dad Ki Maruti was comedy. But no actor plans that. You know, we choose a variety of projects. But what happens is certain projects get delayed, or certain things get released before or released later, which is not in our hands. So ऐसा हुआ है कि पिछली 3 releases comedy थी और ये भी comedy है, but there's no such plan. I'm doing 3 more projects this year, out of which only 1 is a comedy, the other 2 are not. So next year I think you'll get to see a lot of other stuff. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप दोनों एक बार फिर से एक और फिल्म में भी साथ में नजर आने वाले हैं. हाँ, वो मैंने, yeah, that's
मेरे को देवांग ने बात किया एक प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आया है, जिसमें वो सनी को अप्रोच करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी हम लोग की बातचीत नहीं हुई है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, बट वो कब होगा, कब फाइनल होगा, सी बिकॉज द स्क्रिप्ट इज रेडी बट नॉट फाइनल स्टेज नहीं है वो सब, तो अभी टाइम देवांग इंट्रोड्यूस करेगा, अनाउंस करेगा आफ्टर दिस इज ओवर एंड डन. It's a very, very cute story, and once we get around, Yeah. once this film is released, And that is not a comedy. No. That is not a comedy. no, it's not. तो फाइनली कुछ लोचा है के बारे में जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको इन योर लिटिल शॉर्ट वर्ड्स व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दिस फिल्म. We are not redefining cinema in any way. This is not some serious preachy kind of film. This is just a full family entertainer. अगर आपको थोड़ा सा दो घंटे पॉपकॉर्न खाना है, अपने परिवार के साथ थोड़ा हंसना है, then please come and watch this film. Yeah. Leave your brains outside. Just come and have a good time. सनी. I'll agree with Ram, and this is a comedy film, family comedy है, and एक अच्छा सा प्यारा सा sweet funny story है जो I think लोग बहुत हंसेंगे, and they'll have a lot of fun watching this, and get ready to laugh. चलिए विश बोथ ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. सब कुछ लोचा ही लोचे. सनी गाने कैसी लगी? खास नहीं, अगर ऐसी फिल्म में करती रही तो सब पैकअप है. हाँ वेरी गुड फैंटास्टिक. हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत सेक्सी थी, बहुत. Yeah, it was good. Hot. Yeah, it was good. हाँ ठीक है मूवी, नॉट गुड. सोचा था बैड फिल्म. कुछ अच्छा लगा. सनी लियोनी बस हॉरिबल. और की एक्टिंग अच्छी थी. सनी गाने कैसी? सनी लियोनी की सॉरी नो कमेंट. How many points? 2 out of 5. Because story was good, but script and dialogues were very pathetic, and there were no catchy dialogues. When you are making adult movie, you need to give catchy dialogues and lol comedy, but there was. Yeah, it was good comedy, but not that attractive. Yeah.